Hello and welcome back, guys, to the day 5th of your reading section, in which I'm going to tell you today about some of the reading blanks. And in today's video, we are going to know the tips for the reading blanks. First of all, I'll let you know what are reading blanks, what is the marking criteria, different techniques to do them. I mean, which I use like G, S, and T. उनको practice करके देखेंगे, and after that like the do's and don'ts. Like you have to note them then in your notebook or the pen, so just be ready. And as you already know that we are ongoing with a series that is the 79 plus series, जिसके अंदर मैं आपको सारी वीडियोस दे रहा हूँ. So try to have a glance on them and learn something from it. अगर आपको कोई भी comment रहेगा तो you can comment in the comment section box, and please do not forget to subscribe to my channel so that you are going to get all the videos. So let's start it out without wasting time. So very first of all, guys, you have to know कि what are reading blanks. Always remember that you get basically a paragraph. उस पैराग्राफ के अंदर आपको कुछ ब्लैंक्स नज़र आएंगे और उन ब्लैंक्स को जस्ट आपने फिल करना है, जैसे आप बचपन में किया करते थे, +1 +2 के अंदर किए होंगे, अपने 10th के अंदर किए होंगे. तो जस्ट यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स with the appropriate order. So over here you get approximately 5 to 6 blanks in a single question. मीन्स अगर आपके पास एक क्वेश्चन है तो वो 5 या 6 ब्लैंक्स उसके अंदर जो होंगे वो सिंगल मार्क्स. अगर बात करें व्हाट इज मार्किंग क्राइटेरिया, सो दे आर फॉर द सिंगल मार्क, 1 mark for each blank. So you get each blank gives you single mark. It means if you have 5 to 6 blanks, so it becomes for 5 to 6 marks. And in the real exam हमें जो मिलते हैं they are 4 to 5 questions. So based on that 4 to 5 questions are just, you can say, multiplying them, they become approximately 20-25 marks जो आपको केवल रीडिंग ब्लैंक से मिलते हैं, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मार्किंग क्राइटेरिया. और इसके नंबर आपको कहीं नहीं मिलते, दैट यू यूजुअली गेट इन द रीडिंग सेक्शन, nowhere else in speaking, writing or listening. So they are not that much important, just like reading writing blanks, but फिर भी बहुत important होते हैं, so don't try to skip them. So these are just kind of your based on some of the tips that I can tell you, like the different techniques जो हम practice करेंगे. G, S and T, in which G stands for the grammar. I mean, if you want to do that, you can do them on the basis of grammar. You can also use your senses that normally students do. And last one, it's your tukka. Yes, this is my rule, the GST rule for the reading blanks or reading writing blanks. Tukka means you're going to use any kind of guesses that you think of, and then we are going to practice it. So let's first of all start with the grammar part. How do I do them with the grammar? I'm not saying कि मेरे सभी correct होंगे before going ahead, because I'm doing them randomly and I do not try to imitate other YouTubers or something. What they do is this: try to copy the answers first and after that they tell you the solutions. So वो एक different approach है, but in my case I just try to do what I see and what I usually feel. So I'm just going to go with the unpracticed ones for the moment. Just we can say randomly, powerful tool. Okay, so जब भी आप देखें ग्रामर के अकॉर्डिंग, गाइज, यू हैव टू चेक कि आपको 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है. आपको सबसे पहले डूज़ के अंदर बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है स्पेंड 2 minutes ऑलवेज, and then skip the particular one if you don't get it. I mean, you can skip the particular blank, not the question. अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट ब्लैंक पर जाकर टाइम वेस्ट मत कीजिए पहले वाले पर. read the line with the blank first. And time management, this is some kind of crucial thing, where you have to manage your time. If you're not able to manage your time properly, obviously आपका पूरा रीडिंग का स्कोर हैम्पर हो सकता है, राइट. लास्ट में आपके पास शायद टाइम ना बचे, तो मैनेज योर टाइम प्रॉपरली इन द एंटायर रीडिंग सेक्शन. एंड डोंट्स, first of all and the last of all, it's the wasting of the time. Don't waste time. If you don't think, just immediately go to the next blank. So let's just start with this question first and let's have a look with the grammar part. So over here I can check that what they are saying is, the internet has become humanity's most powerful tool for information dash and communication. Guys, इसको मैं सिर्फ ग्रामर बेसिस पे कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ग्रामर
एक सेंस पे एक तुक्का भी मारेंगे उसमें जो हमें लग रहा है, फिर उसके बाद कंप्लीट सेंस यूज़ करेंगे, देखते हैं किस में ज़्यादा रेशो सही रहती है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना वो वाली टेक्निक अपना सकते हैं जो आपको बेटर लगे। इंटरनेट हैज़ बिकम ह्यूमैनिटीज़ मोस्ट पावरफुल टूल फॉर इंफॉर्मेशन डैश एंड कम्युनिकेशन। तो जब भी आपको यहाँ पर कंजंक्शंस नज़र आएँ एंड यहाँ पर एक ब्लैंक नज़र आ रहा है, तो याद रखना है प्रेपोजिशंस, पंक्चुएशंस and conjunctions, they are also like all of them, they're used to connect the nouns. तो in case of nouns if I say यहाँ पर कोई noun होना चाहिए जो communicate को relate करे, communication को, तो information technology या something, let me check. Exchange, yes it can be. Influx is a noun as well. Altered is a verb. Stability is a noun. Strict verb. Dominance noun. Permission and treatment are also nouns. So how do you check nouns? Basically add good और bad बिफोर दैम। अगर आपको सेंस आती है कि हाँ वो गुड और बैड हो सकती है वो चीज़, तो दैट इज़ अ नाउन। तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज लुक्स बेटर बिकॉज इंटरनेट की बात कर रहा है, बिकॉज डीपली ना भी जाएँ तो आप सेंस के अकॉर्डिंग जस्ट यूज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बट ग्रामर मोस्टली फॉलो कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज हाउएवर दिस डैश हैज़ इट्स ड्रॉबैक्स। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, ये एक सेंटेंस का सब्जेक्ट का काम कर रहा है जिसमें वर्ब दी गई है हैज़। आप दोनों साइड देखें, यहाँ पर एस मतलब सिंगुलर्स के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उसमें एस लगता है, लाइक दिस समथिंग हैज़ इट्स ड्रॉबैक्स। तो लेट मी चेक इट आउट। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे कि सिंगुलर का नाउन, दिस इज़ नॉट अ नाउन, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ नाउन। सो दिस इन्फ्लक्स, दिस डोमिनेंस, स्टेबिलिटी, परमिशन एंड ट्रीटमेंट। अब देखिए इंटरनेट की बात कर रहा है, थोड़ा आपको हिंट लेना है कि ये इन्फ्लक्स तो हो नहीं सकता, स्टेबिलिटी भी नहीं हो सकता, परमिशन भी नहीं लग रहा है, दिस डोमिनेंस हो सकता है, ट्रीटमेंट आई एम नॉट श्योर, बट ये जो डोमिनेंस है इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। हाउएवर की बात कर रहा है क्योंकि अपोजिट साइड पर जा रहा है, तो अभी तक अच्छी बात बता रहा था, अब ये उसकी नेगेटिव बात बता रहा है, बट सेम चीज़ की, इंटरनेट जो कि एक डोमिनेंट रूप में आगे आ रहा है। So traditional forms of media and interpersonal communication have been significantly dash। अब जब भी आपको ly नज़र आए ध्यान रखना है, lys are adverbs and adverbs are always following either like a kind of verb and an adjective। तो यहाँ पर आपको ly जो adjective I mean adverb नज़र आ रही है, यहाँ पर adjective नहीं आते हुए verbs आ सकती हैं क्योंकि सेंस दे रहा है have been के बाद, और have been के बाद मोस्टली थर्ड फॉर्म आती है। तो थर्ड फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर ऑल्टर्ड एंड शिफ्ट द दो दी गई है। सो कम्युनिकेशन हैव बीन सिग्निफिकेंटली, ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मीडिया एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैव बीन सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड वी कैन से, बट लेट्स गो विथ ऑल्टर्ड मीन्स चेंज कर दी गई हैं। ट्रेडिशनल फॉर्म्स, आई एम सॉरी वेट, डोमिनेंस, नाउ दिस वन। Then this digital revolution spearheaded by the rise of social media and online platforms has resulted। अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि हैज़ रिजल्टेड जो वर्ब है वो डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए लगा है, मतलब इस रेवोल्यूशन ने रिजल्ट किया है इन अ कांस्टेंट डैश ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आर्टिकल यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, जब भी ये स्ट्रक्चर नज़र आए आर्टिकल, उसके बाद यहाँ प्रेपोजिशन, अगर उससे पहले ब्लैंक है तो आज मैंने बताया था कि पीपीसी प्रेपोजिशन पंक्चुएशन कंजंक्शन ये नाउन्स को जोड़ने का काम करती है। तो मतलब यहाँ पर आपका नाउन आना चाहिए, और वो नाउन सिंगुलर का होगा या प्लूरल का होगा, वो डिपेंड करता है उसके आर्टिकल के ऊपर। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि आर्टिकल सिंगुलर का है, हैज़ रिजल्टेड इन अ कांस्टेंट डैश ऑफ इंफॉर्मेशन। सो कॉन्फ्लेक्स, कांस्टेंट, इनफ्लक्स तो नहीं होगा, स्टेबिलिटी, परमिशन, ट्रीटमेंट, इनफ्लक्स हो सकता है इंफॉर्मेशन। See, I'm just going with grammar right now. I'm not using any sense. So let's submit and check it out कि मेरे 4 में से कितने सही होते हैं अगर मैं ये टेक्निक यूज़ करता हूँ। So that's very good. Still, like they all are correct. But what over here I have used like some of the basic things that I know and you should also know कि ग्रामर को कैसे यूज़ किया जाता है। ग्रामर में आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है SVO, वो हमेशा याद रखना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ग्रामर मीन्स लाइक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो आपका सबसे पहली टेक्निक है। उसके बाद एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। सो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज, आई मीन जो हमेशा यूज़ होते हैं, और एक आप याद रख सकते हैं
नाउन्स को यूज करने का as I told you. PPC like preposition, punctuation and conjunction. So they all are always used to connect to नाउन्स बेसिकली. तो ये फॉर्मूला भी यूज़ होता है. सो यही फॉर्मूलाज को यूज़ करके मैं यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को करता हूँ कि जैसे फर्स्ट वाले में आ रहा है यहाँ पर पंक्चुएशंस आई मीन कंजंक्शंस से नाउन जुड़ेगा और सिंगुलर का नाउन आ रहा है, सिंगुलर की वर्ब है तो सिंगुलर का सब्जेक्ट भी आना चाहिए. उसके बाद एल वाई के बाद थर्ड फॉर्म या फिर हैव बीन के बाद ऑलवेज रिमेंबर ये आपका हैव बीन ऑल्टर्ड, ये पैसिव वॉइस में चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट के. तो ग्रामर रोल प्ले कर रही है यहाँ पर. जो मैंने यूज़ किया आर्टिकल के बाद नाउन आता है, ठीक है, वो हल्का बहुत आपको नो डाउट सेंस यूज़ करना पड़ सकता है बट स्टिल आपका मोस्टली आर्टिकल के ऊपर ही आई मीन ग्रामर के ऊपर ही डिपेंड करती है वो चीज़, राइट. सो दिस इज़ ऑल आई एम यूजिंग माई काइंड ऑफ ग्रामर. सो नाउ लेट्स जस्ट गो ऑन टू द सेंस एंड डोंट यूज एनी ग्रामर. ओके, so what does it say? Psychology and psychiatry are often confused, yet they are distinct fields. Psychology focuses on the study of behavior and the mind, utilizing various therapeutic techniques. एक टेक्निक लाइक यहाँ पर टिप आपको कह सकते हैं, दे सकता हूँ. कोमा के बाद कभी आपको ब्लैंक नज़र आता है तो वहाँ पर आपने ING फॉर्म को यूज़ करना है हमेशा. Various therapeutic techniques for mental health dash health disorders or something health issues. Okay, psychiatrists on the other hand, दिस इज़ अ कोलोकेशन. और ऐसे ही आपके पास रीडिंग ब्लैंक्स वहाँ पर आते हैं. जस्ट आपको माइंड सेट स्ट्रॉन्ग रखना है अपना. आर डॉक्टर्स स्पेशलाइजिंग इन मेंटल हेल्थ एबल टू डैश मेडिकेशंस अलोंगसाइड थेरेपी, प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस. Both fields play crucial roles in mental health treatment, but they dash it from different angles. They see it from or something. Approach, invest, carry. अप्रोच ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि अप्रोच किया जाता है अलग अलग एंगल्स से. सो दिस इज़ बेसिकली आई एम यूजिंग माई सेंस इन विच मुझे यहाँ पर थोड़ा कोलोकेशंस में मिली लाइक हेल्थ इश्यूज ऑन द अदर हैंड. सो आई थिंक इट शुड बी करेक्ट. येस इट्स करेक्ट. सो आई एम नॉट सेइंग कि आपको भी ऐसे बिल्कुल सेम मिलेंगे वहाँ पर, इस तरह के मिलते हैं, सिंपल मिलते हैं. सो एक और सेंस के अकॉर्डिंग करके देखते हैं. द फर्स्ट मिलेनियम BC डैश द राइज ऑफ मेजर ट्रेडिंग हब्स लाइक टायर एंड सिडोन. फैसिलिटेटेड क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, मे बी ग्रामर ना भी चेक करें तो स्टिल फर्स्ट मिलेनियम BC ने कुछ किया, फैसिलिटेट किया, डिराइव किया, विटनेस किया, लोकेट किया, फंक्शन किया. फैसिलिटेटेड कह सकते हैं यहाँ पर लाइक टायर एंड सिडोन विच नॉट ओनली डैश द एक्सचेंज ऑफ गुड्स. ओके, फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज, ये यहाँ पर सही लग रहा है कि उन्होंने फैसिलिटेट किया. फर्स्ट में हम विटनेस्ड भी कह सकते हैं, उन्होंने विटनेस किया मतलब उस चीज़ को देखा, जिसकी वजह से ना उन्होंने स्थापित किया एक्सचेंज ऑफ गुड्स बट ऑल्सो बिकेम सेंटर्स फॉर कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज. दीज ट्रेडिंग पोस्ट्स वर स्ट्रेटेजिकली डैश अलोंग कोस्ट लाइन्स. LY अगेन आई टोल्ड यू, डिराइव्ड, इंटरप्रेटेड अलोंग, लोकेटेड अलोंग, यू कैन से वो स्थापित थे कोस्ट लाइन्स के पास, किनारों के पास. द सक्सेस ऑफ दीज ट्रेडिंग रूट्स कैटलाइज्ड. अब देखिए रूट्स की बात कर रहे हैं तो लोकेट हो सकता है वहाँ पर. वर्ड्स को मैच करने की कोशिश किया कीजिए. मतलब उन्होंने ना केवल विटनेस किया बट फैसिलिटेट भी किया, साथ साथ उनको सेंटर्स भी बनाया गया और वो लोकेटेड होते हैं यहाँ पर. इकोनॉमिक ग्रोथ लीडिंग टू अ डैश इन अर्बनाइजेशन. आर्टिकल कॉन्फिडेंस नाउन सर्च ही बचा है बेसिकली. देखिए अब साइंस के अकॉर्डिंग देखें, जो फर्स्ट मिलेनियम BC था उसने विटनेस किया मतलब कुछ चीज़ उसने देखी, राइज देखा उसने मेजर ट्रेडिंग हब्स लाइक टायर और सिडोन का. एंड जिसने फैसिलिटेट किया ना केवल एक्सचेंज को, तो पॉजिटिव बात चल रही है मतलब. तो आपको सेंस भी समझनी है वहाँ पर कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है. देन उसके बाद आपको अपने रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश करनी है, वट एवर जो टेक्निक आप यूज़ करते हैं. अगली पिछली लाइन देखनी है उसकी ध्यान से. देन यू कैन से कि आपको थोड़ा हिंट मिल जाता है कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर सॉल्यूशन उसका मिल सकता है. आई एम नॉट सेइंग 4 आउट ऑफ 4 बट येस 3 आउट ऑफ 4, 4 आउट ऑफ 5, इस तरह से आपको लाइक इसके अंदर
आंसर्स आपके मिल सकते हैं गाइस। लास्ट में कह रहा है जो सक्सेस थी, मतलब पॉजिटिव बात कर रहा है, कैटेलाइज किया मतलब तेज किया किसी चीज़ को, लीड किया जिस चीज़ की वजह से एक सर्ज आया मतलब इंक्रीज आया। बट जब आप सेंस के थ्रू कर रहे होंगे तो आपको आई मीन वोकेबुलरी की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो दीज ऑल आर करेक्ट। सो वी कैन से दैट्स गुड टेक्निक एज वेल। अगर आप केवल सेंस पे चल रहे हैं, बट आपको वोकेबुलरी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सेंस के केस में। ग्रामर के केस में आपको ग्रामर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं तुक्के के ऊपर, मतलब जो हमें लग रहा है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, कई बार वो सही भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। सो द सिचुएशन ऑफ रेडली अवेलेबल, द एम्प्लॉइंग, द रिड्यूसिंग, द कन्वीनियंस, कन्वीनियंस कह सकते हैं, ईजिली अवेलेबल हो रहा है फूड का, एंड क्रिएटिव प्रोसेस, डैश फैमिलीज टुगेदर, एंड इंश्योरिंग। अब देखिए कॉमा के बाद आ रहा है एक तो आईएनजी, और आपको आगे सेंस भी मिल रही है, वैसे इंश्योरिंग दिया हुआ है, ensuring the nutritious meals तो मीन्स आई एन जी यहाँ पर आ सकता है। एम्प्लॉइंग फैमिलीज टुगेदर, रिड्यूसिंग, contrasting, bringing together, yes it can be. Today's fast paced lifestyle has led to a dash on quick, often less nutritious food. Led to a employing तो नहीं होगा, reducing, situation on quick, बट इट डजंट गिव मी सेंस। बट हमें तुक्का यूज़ करना है तो हम तुक्के के अकॉर्डिंग कुछ भी लगाएंगे वहाँ पर, मेरे हिसाब से वर्क नहीं करना चाहिए। ऑफ्टन लेस न्यूट्रिशियस फूड ऑप्शंस, डैश फैमिली बॉन्डिंग टाइम एंड एन्जॉयमेंट ऑफ कुकिंग, एम्प्लॉइंग फैमिली बॉन्डिंग, रिड्यूसिंग, वी कैन से, लेट्स जस्ट चेक इट आउट फर्स्ट। सो एक गलत हो गया हमारा इसमें। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ गाइस कि तुक्का जो होता है वो कई बार आपका सही भी हो सकता है, कई बार गलत भी हो सकता है, तो वी डोंट हैव टू गो डीपली ऑन टू दैट, जस्ट ट्राई टू थिंक ओवर इट कि आपको कौन सा टेक्निक आपके अकॉर्डिंग वर्क करता है। सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर मैं आपको सभी टोटल बताऊंगा, लाइक ग्रामर, सेंस और तुक्का जो आपका लगता है वो कंप्लीटली यूज़ करना है हमने। लेट्स जस्ट डू दैट। सो पेरेंट्स टीचर्स फंडामेंटल लाइफ डैश लाइक वॉकिंग एंड स्पीकिंग। तो अब यहाँ पर देखिए आपका आर्टिकल तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट ज़रूर दिया हुआ है, इसमें वर्ब आ रही है। वो हमें क्या सिखाते हैं फंडामेंटल लाइफ के कुछ, जैसे कि वॉकिंग एंड स्पीकिंग, तो ये हमारे कुछ प्लूरल के नाउंस को कैरी कर सकता है। ग्रामर के अकॉर्डिंग प्लूरल के नाउंस में मोमेंट्स है, वीकनेसेस, स्किल्स। सो वीकनेसेस तो नहीं सिखाएंगे, वॉकिंग और स्पीकिंग वीकनेसेस नहीं है। सेंस के अकॉर्डिंग आई मीन ग्रामर में तो 3 आ गए, सेंस में आप देखना मूवमेंट्स हो सकते हैं ये, बट मूवमेंट होता तब भी, ये मूवमेंट नहीं है तो हम बोल सकते हैं स्किल्स। उसके बाद दे स्पेंड डैश अमाउंट ऑफ टाइम विद अस। अब आर्टिकल भी दिया हुआ है ग्रामर के अकॉर्डिंग देखें, और अमाउंट यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ गुड और बैड की सेंस भी आती है, और ऑफ भी लगा हुआ है। ऑफ प्रेपोजिशन है जो दो नाउन्स को जोड़ती है, और नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव्स आते हैं। मैंने फॉर्मूला लिखा भी है, आप चेक कर सकते हैं एक बार फिर से। दिस वन, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो द दे स्पेंड अ डैश अमाउंट ऑफ टाइम विद अस, तो इट कैन बी अ नाउन विद द सिंगुलर थिंग एंड अ कॉन्सोनेंट साउंड। सो वी स्पेंड, दे स्पेंड अ म्यूचुअल अमाउंट ऑफ टाइम तो नहीं कह सकते, मोमेंट्स नहीं आएगा, वीकनेसेस नहीं आएगा, बिकॉज देज आर नाउन्स। रेट्स भी नाउन है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, न्यूमरस अमाउंट और रिगरस। रिगरस लुक्स लाइक अ नेगेटिव वर्ड, सो अंडरस्टैंडिंग आवर स्ट्रेंथ, तो what we can say is like numerous or significant, yes we can say significant amount of time, मतलब इनफ टाइम हमारे साथ बिताते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं हमारे स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस है, तो कोलोकेशन भी हो गई। एंड हेल्पिंग अस इम्प्रूव, मतलब हमारी स्ट्रेंथ्स को और वीकनेस को अंडरस्टैंड करते हैं। दे पास ऑन वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस एंड हैबिट्स, वो अपना एक्सपीरियंस और हैबिट्स लाइक देते हैं। शेपिंग आर बिहेवियर, कोमा के बाद आईएनजी आपको यहाँ पर मोस्टली नज़र आएगा। एंड कैरेक्टर, parents with their unconditional love educate us in dash life aspects, so different or something in, yes numerous, numerous means many। अब देखिए ग्रामर भी मैंने यूज़ किया जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एडजेक्टिव आना चाहिए या आई मीन नाउन आना चाहिए या वर्ब आनी चाहिए। कई बार कोलोकेशंस के थ्रू आपको मिल जाती है, कई बार वोकेबुलरी की नॉलेज के थ्रू मिल जाता है आंसर, कई बार आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग मिलता है। तो जब आप इन तीनों को यूज़ करते हैं तो आपका 99% गारंटी के साथ आंसर ठीक होने के चांसेस होते हैं गाइस। सो लेट मी सबमिट एंड चेक इट आउट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव डन देम करेक्टली एंड आउट ऑफ 16 ब्लैंक्स वी गॉट 5।
सो ऐसे एग्जाम में होता है, आप मतलब एक एक क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, डीपली मत जाइए, स्पेंड कीजिए 2 मिनट हर एक क्वेश्चन के ऊपर, स्किप कीजिए पर्टिकुलर वन को अगर आपको वो नहीं आ रहा है, रीड द लाइन विद द ब्लैंक, जिसके अंदर ब्लैंक दिया गया उसको रीड करें और टाइम को मैनेज करें, सो यू विल डेफिनेटली गेट योर स्कोर्स. So let's just do not waste our time. If you have any doubts related to your reading blanks or any other speaking module, writing module task, reading or listening, you can directly call on to my given number, that is 8572067589, and you can avail the classes so that you can get 1 day free demo और उसके बाद अपना 15 से 20 दिनों में एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करके. So don't waste your time. Low score no more. Have a good day, guys.